Hello students, welcome to SMaths. Last video रे हम question number 1 to question number 3 solve करी सारी चंदी. Now we start करीबा question number 4. Number 4 show that the following functions are injective means हमको 1 1 check करी show करी रही. The first bit अच्छी fx equals sin x on the closed interval 0 to pi by 2. Second, third, 4 अच्छी 1 by 1 हमें solve करीबा. The first bit fx equal to sin x given देछि on the closed interval 0 to 90. तो 1 1 हमें proof करीबा. Let नहीं जिबा x1 and x2 two different elements belongs to domain of the function 0 to pi by 2. The interval टा हमरो domain of the function. Then fx1 equal to fx2 यूज करीबा. fx1 fx equal sin x, fx1 equal to sin x1. fx2 equal to sin x2. So this implies x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to interval 0 to 90. So fx1 equal to fx2 implies that x1 x2 hella container sin function sin 0 0 sin 91 sin 91. तो each angle पे हमारा different value था different value थी वो तो हमने each angle पे हमारा different images आसीबो तो हमने वो function टा definitely 1 1 हबो और sin function रे value तो positive in the first part हमको जाना अछि trigonometry part रो तो हमने each angle रो each element रो different images आसीबो तो definitely वो function टा 1 1 हे जिवो. So fx is 1 1. और भी तुम्हें कही परिबो इंजेक्टिव. बट यदि हमरा 0 to pi थंदा तले हमरडी मेनली वन फंक्शन हेतंदा 1 1 हबनी केना sin 80 पॉजिटिव sin 30 रे वैल्यू 1/2 sin 150 वैल्यू 1/2 सेटा मेनली वन हेतंदा त मेनली वन ले हमरा not 1 1 हेतंदा. देन सेकंड बिट fx इक्वल टू हमको cos x given दे on the closed interval 0 to pi. Let x1 and x2 belongs to interval 0 to pi. Then fx1 equal to fx2 यूज करेगा तो fx1 equal to cos x1 और fx2 equal to cos x2. So this implies x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to interval 0 to pi. तो इटी हमारा x1 equal to x2 कौन पे आसिला cos function positive in the first quadrant, cos रा value negative in the second quadrant. तो हमें जो भी एंगल जो भी हमारा एलिमेंट ना तारो इमेज डेफिनेटली डिफरेंट आसीबो. तो sin cos 0 तो 1 cos 90 तो 0 cos 180 -1 तो हमनको ईच एंगल रे डिफरेंट वैल्यू मिलथिबो. यदि ईच एंगल रे डिफरेंट वैल्यू मिलिबो तो हमने डोमेन सेट रो ईच एलिमेंट रो डिफरेंट इमेज थिबो तो फंक्शन टा डेफिनेटली 1 1. सो fx इज 1 1 और इंजेक्टिव. Then third bit fx equal to log x base a on the interval 0 to infinity. तो ये पार्ट तो हमको ऑलवेज गिवन थी ना लॉगरिथम डेफिनेशन रे a ऑलवेज पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1 एटा हमरो ऑलवेज थाए. तो तुम डेफिनेशन चेक करि परिबो लॉगरिथम फंक्शन रो a टा ऑलवेज पॉजिटिव a नॉट इक्वल टू 1 थिबो. लेट x1 and x2 belongs to interval 0 to infinity. Then fx1 equal to fx2 implies that log x1 base a log x2 base a. So this implies x1 equal to x2 for all x1 and x2 belongs to 0 to infinity. So fx is 1 1.
और इंजेक्टिव। तो यार भी डोमेन रो ईच एलिमेंट तुम चेक करिवो डिफरेंट इमेजेस थिबो तो हमर लॉग फंक्शन टा भी डेफिनेटली कोन हबो ना इंजेक्टिव फंक्शन। fx equal to a to the power x on r अछि तो fx equal to a to the power x given function तो let नवा x1 and x2 belongs to r तो हमर इटी r टा करना डोमेन ऑफ द फंक्शन तुम्हें ऑलवेज करना choose two elements from the domain of the function then fx1 equal to fx2 implies that a to the power x1 equal to a to the power x2 implies that x1 equal to x2 is given for all x1 x2 belongs to interval r तो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम्हें ऑलरेडी ग्राफ पे करी सर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रो ग्राफ एक्चुअली ए शेप थिला x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन तो ईच एलिमेंट रो डिफरेंट इमेजेस थिबो जो भी एलिमेंट नबो डिफरेंट इमेजेस आसीबो ए y टा हमरो इमेज x रा हमरो जहा एलिमेंट अछि डोमेन रो तो x रा इमेज y अछि देन ईच एलिमेंट रो डिफरेंट इमेजेस थिबो तो डेफिनेटली द फंक्शन इज 1 1 सो fx इज 1 1 और इंजेक्टिव। तो ये सब तुम पे किछि डिफिकल्ट हो तो तुम्हारा fx1 इक्वल fx2 रो स्टार्ट हबो x1 इक्वल x2 प्रूफ करला माने वो फंक्शन डेफिनेटली कोन प्रूफ हो ना इंजेक्टिव फंक्शन और 1 1 फंक्शन ही प्रूफ हबो। Number 5 show that the functions f and g defined by fx equal to log x gx equal to log x square are not equal हमको प्रूफ करी अछि fx is not equal to gx even though log x square equal to log x तो लॉगरिथम प्रॉपर्टी हमरा log m to the power m थिले n log m यदि मु प्रॉपर्टी अप्लाई करिवे दिटा तो इक्वल है जीवो बट हमको प्रूफ करिवार अछि fx is not equal to gx। तो टू फंक्शंस आर इक्वल फंक्शंस तो तुम्हें ऑलरेडी फर्स्ट ईयर रे इस टॉपिक तुम्हारा कवर कर छी तो टू फंक्शन सपोज मोर f फंक्शन अछि g फंक्शन अछि तो दीस टू फंक्शंस आर इक्वल तो यार कंडीशन कोन थिला ना डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g सेकंड कंडीशन थिला को डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू को डोमेन ऑफ g एंड थर्ड कंडीशन थिला रेंज ऑफ f equal to range of g यदि ए थ्री कंडीशन सैटिस्फाई करिवो देन मोर टू फंक्शंस आर इक्वल तो या भीतर को भी गोटे कंडीशन फॉल्स हे गला तले मोर आंसर हबो टू फंक्शंस आर नॉट इक्वल फंक्शंस। तो हमर एमटी तो देखो log x स्क्वायर तो log x स्क्वायर इक्वल टू मु लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई करिवे log m to the power n तो दिस इक्वल टू n log m तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करले हमरा रिजल्ट 2 into log x तो प्रॉपर्टी रे इक्वल होची माने न जे दुटा फंक्शन इक्वल थिवो एटा इक्वल होबनी तने हमको इक्वल फंक्शन जदी चेक करियर अछि हमको डोमेन कोडोमेन रेंज बाहर करे छी देखियो फर्स्ट फंक्शन तो fx इक्वल हमको गिवन देछि 2 log x तो दिस फंक्शन fx is defined for all x belongs to 0 to infinity तो मु 0 to infinity कौन पे नेली ना लॉगरिथम log 0 मुझे आंसर नॉट डिफाइंड log जो भी पॉजिटिव नंबर नबो एटा तुमको डिफाइंड मिलिबो log नेगेटिव नंबर नेले से भी हमको नॉट डिफाइंड तुम्हें चाहे भी एक सो चेक करि परिबो log नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड log 0 नॉट डिफाइंड log पॉजिटिव डिफाइंड तो हमने फंक्शन टा डिफाइंड होची माने x टा हमरो पॉजिटिव हो दरकार पॉजिटिव माने 0 टू इंफिनिटी तो देयरफॉर मते डोमेन ऑफ द फंक्शन मिली गला 0 टू इंफिनिटी जोठी डिफाइंड हबो सेटा तो हमरो डोमेन सेट तो हमरो फंक्शन रे डोमेन मिलला 0 टू इंफिनिटी ना fx रे डोमेन मिली गला देन हमें gx रे डोमेन फाइंड करिवा तो gx इक्वल टू log x स्क्वायर अछि तो ये x स्क्वायर अछि माने जहां भी नंबर मु रियल नंबर यूज करिवि ताको स्क्वायर करे पड़िबो तो नेगेटिव रो स्क्वायर भी पॉजिटिव हे जो पॉजिटिव स्क्वायर भी पॉजिटिव हो 0 रो स्क्वायर तो 0 होबो तो 0 पुट करले log 0 टा नॉट डिफाइंड तो इटा तो नॉट डिफाइंड मु ऑलरेडी कहि सरी छी
तो तमने फंक्शन टा 0 रे डिफाइंड होबनी आउ नेगेटिव नंबर पुट कले माने नेगेटिव रियल नंबर यूज कले मोर स्क्वायर हे कि पॉजिटिव जो सेठी भी डिफाइंड हबो पॉजिटिव रे डिफाइंड हबो नेगेटिव डिफाइंड हबो ओनली 0 रे डिफाइंड होनी सो gx is defined for all x belongs to r minus 0 0 को छाड़ी के और सब पॉइंट रे हमारा डिफाइंड हबो therefore domain of gx equal to r minus 0 तो fx रे डोमेन gx रे डोमेन देखो डिफरेंट आसी गला तो फर्स्ट कंडीशन तो फेलियर हे गला तो सिंस डोमेन ऑफ fx is not equal to domain of gx. So this implies fx is not equal to gx. So एदिटा केबे भी इक्वल हबनी तो फंक्शन fx not equal to gx. But हमारा log x square equal to 2 log x हेले भी एदिटा फंक्शन अनइक्वल हबो ही हबो. तो राइट साइड दे दो स्टेटमेंट दो log x square equal to 2 log x. तो नॉट इक्वल हमारा रीजन करना डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंट अछि नंबर 6 give an example of a function which is surjective but not injective second bit third bit fourth bit भी अछि हमें सबुरा एग्जांपल दबा फर्स्ट बिट surjective but not injective माने not 1 1 तो अगर let A be the set नेले 1 2 3 B be the set A B तो तुम्हें चाहे एलिमेंट चेंज करि परिबो किछि प्रॉब्लम नाही तम फंक्शन टा डिफाइंड फ्रॉम A to B अछि मु A to B नेली तो 1 2 3 फर्स्ट सेट एलिमेंट A B सेकंड सेट एलिमेंट तो मते ऑन टू करिवर अछि बट नॉट 1 1 त माने मेनी 1 मु कर देबी तो मेनी 1 कर देले और देखो ऑन टू भी हेगला कना ईच एलिमेंट रा प्री इमेज अछि तो देयरफॉर f रा एलिमेंट्स असे जीवो 1a देन 2a देन लास्ट एलिमेंट रा 3b तो क्लियरली करना ए फंक्शन टा हमरो सर्जेक्टिव अछि बट नॉट इंजेक्टिव माने नॉट 1 1 अछि देन सेकंड बिट इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव तो हमें इंजेक्टिव नबा बट नॉट सर्जेक्टिव तो अगर लेट a be the सेट ला 1 2 3 यूज कर ले B A B C मोड D यूज कर ले ना मते 1 1 बट नॉट ऑन टू प्रूफ करियर अछि F defined from A to B 1 2 3 A B C D image of 1 image of 2 image of 3 ने ली now देखो तुम्हारा 1 1 अछि माने इंजेक्टिव अछि बट नॉट ऑन टू कने D रो प्री इमेज नाही एटा नॉट ऑन टू अछि माने नॉट सर्जेक्टिव तो देयरफॉर मोर फंक्शन मिलला 1a देन 2b थर्ड एलिमेंट 3c बस ये ला एग्जांपल ऑफ इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव थर्ड बिट अछि नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव त माने हमें मेनी 1 आ तुमरा इनटू रो एग्जांपल दवा लेट A be the set 1 2 3 B set A B C तो तुम्हें चाहिए एलिमेंट चेंज करि परिबो एमति किछि प्रॉब्लम नाही तो F तक इन डिफाइन हो फ्रॉम A to B F defined from A to B 1 2 3 A B C तो हमको इंजेक्टिव नाइदर इंजेक्टिव माने नॉट 1 1 तले हमें डेफिनेटली मेनी 1 कर दबा मेनी 1 हे गला ना देखो मोर मेनी 1 अछि माने नॉट 1 1 अछि तो C रा प्री इमेज नाही माने मोर नॉट ऑन टू अछि तमने नॉट सर्जेक्टिव अछि तले मोर फंक्शन रा एलिमेंट हे गला 1a 2a 3b तो क्लियरली करना नॉट 1 1 अछि और नॉट ऑन टू भी अच्छी तमाने नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव रा एग्जांपल तो ये जो f डिफाइंड फ्रॉम a to b तुम्हें each सॉल्यूशन रखती हो f डिफाइंड फ्रॉम a to b
f defined from a to b. Then fourth example हमको bisective रो example दबार अछि. तो let ने जीवा a equal to 1 2 3, b equal to a b c. माने मते 1 1 and on to रो example दबार अछि. f defined from a to b. One, two, three, A, B, C. Image of 1, image of 2, image of 3. Now देखो ठीक से तुम फंक्शन टा 1 1 भी अच्छी और फंक्शन तुम्हारा on 2 अच्छी तो माने बाइसेक्टिव ही अच्छी. तो therefore f रो एलिमेंट्स 1a, 2b, 3c ला एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन. Number 7, prove that the following sets are equivalent. तो हमको क्वेश्चन रे 4 सेट्स गिवन देछि तो हमको इक्विवेलेंट प्रूफ करियर अछि. तो ठीक है फर्स्ट ईयर रो सेट्स कथा मने पकाओ. 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट. सपोज मोर a and b 2 सेट्स अछि तो 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट मींस n of a equals to n of b. यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स इक्वल थिबो एलिमेंट्स कोन अछि मोर जानिबर नै मुझे यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल मिलला देन 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट. यदि मते 4 सेट्स इक्विवेलेंट प्रूफ करियर अछि तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स मते इक्वल प्रूफ करियर अछि. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी हमर को कंडीशन रे ना बाइसेक्टिव. यदि मोर फंक्शन टा बाइसेक्टिव होबो तने मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट. तो हम एटी केमती प्रूफ करिवा ठीक है लेंथी तो अछि सॉल्यूशन ठीक है पेशेंस रखी सुनिबा देखिए बुझिएबा. तो मते के कोन करियर अछि ना लेट ने जीवा a b द फर्स्ट सेट 1 2 3 4 5 6 एमती कंटिन्यू करछि. b सेट 2 4 6 8 10. देन c सेट यूज कर ले थर्ड सेट 1 3 5 7 9 एमती कंटिन्यू करछि. एंड सेट डी हियर 1 4 9 16 25 तेला हमर फोर्थ सेट. ना मते a b c d ऑल आर इक्विवेलेंट प्रूफ करियर अछि. तो इक्विवेलेंट प्रूफ करे पे हमें के a b को इक्विवेलेंट प्रूफ करिवा देन a c को इक्विवेलेंट प्रूफ करिवा देन a d को प्रूफ करिवा हमको एंड रे कंक्लूजन मिलिवा a b c d आर इक्विवेलेंट सेट्स. तो इक्विवेलेंट प्रूफ करिवार मींस करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b मते प्रूफ करियर अछि. तापे मते गोटे फंक्शन डिफाइन करियर अछि. फंक्शन टा बाइसेक्टिव प्रूफ कर दो. यदि बाइसेक्टिव प्रूफ हे जीवो देन मोर कोन हबो ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b हबो. तो मो फर्स्ट केस let f defined from set a to set b. then fx equal to मु यूज करली ना देखो 1 ई तरह ट्वाइस अछि 2 रो 2 टाइम्स 3 रो 2 टाइम्स अछि 4 रो 2 टाइम्स तो मु fx इक्वल टू 2x यूज करली. तो एमती तुम देखि कि भी जानि परियो जदि न जानि परियो तो तुमको कोन ना an जो ap रो फार्मूला थिला an और tn इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d. तो ये फार्मूला यूज करी कि भी तुम्हें जानि परियो जे तुमरो nth टर्म जदि nth टर्म जानि गली तले मोर फंक्शन टा भी मिलि जीवो इजीली. तो मते टी fx इक्वल टू x मिला मु केमती जानि ना 1 रो 2 टाइम्स अछि 2 रो 2 टाइम्स अछि 3 रो 2 टाइम्स अछि 4 रो 2 टाइम्स अछि 5 रो 2 टाइम्स अछि 6 रो 2 टाइम्स अछि 12 थी एमती कंटिन्यू करथिबो तो मु fx इक्वल टू 2x नै गली. ने फंक्शन टा हमें बे 1 1 और 1 2 प्रूफ करिवा देन हमर बाइसेक्टिव हो देन n of a इक्वल टू n of b हो. तो ठीक है जल्दी जल्दी करिवा. तो 1 1 let x1 x2 belongs to set a. तो ये हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन. then fx1 equal to fx2. तो this implies fx1 equal to 2x1 equals to 2x2. तो this implies x1 equal to मते x2 मिलना for all x1 and x2 belongs to set A. So fx is 1 1. Then on to check करिवा. तो on to let नहीं जो let y belongs to codomain set. Codomain set भी अच्छी this one the codomain of the
function. Then y equal to fx implies that y equal to 2x, so implies that x equal to y by 2. Now clearly y by 2, तो तुम्हें y तो b रो एलिमेंट ना, तो y तुम्हें 2 पुट करना माने तुमको 2 by 2 1, तुम्हें 2 रो प्रीमिस 1 मिलिबो, 4 रो प्रीमिस एमती 2 मिलिबो, 6 रो 3 मिलिबो, तो माने each एलिमेंट रो प्रीमिस अछि. तो माने करना मोर x टा belongs to set A सिबो for all y belongs to set B. So fx is onto. तो तुम्हें स्टेटमेंट दबो for all y belongs to B, codomain of the function, there exists x belongs to A, domain of the function, such that fx equal to number 2x अच्छी, तो 2x equal to 2 into y by 2, so this equal to y, fx equal to y मिल रहा, so fx is onto. So fx is onto. यदि onto है गला 1 1 अच्छी onto अच्छी, तो therefore fx is bijective. तो bijective है ना माने मते n of a equals to n of b मिल रहा. तो n of a equal to n of b means, so this implies sets A and B are equivalent. हमको इक्विवेलेंट प्रूफ करिया पे हमको n of a equals to n of b करिया. जेमते हमें फर्स्ट बिट रे प्रूफ करले इक्विवेलेंट a b इक्विवेलेंट, देन a c को इक्विवेलेंट प्रूफ करिवा, a d को इक्विवेलेंट प्रूफ करिवा, देन हमरो कंप्लीट हे जिवो सॉल्यूशन. Now we proof करिवा AC equivalent. The second case, let f defined from A to C and fx equal to मु यूज कर लिए 2x minus 1. तो तुम्हें एउटा कॉमन करिवा an रे इटी a equal to 1, n तो तुमको जाना नहीं, d equal तुमको 2 पुट कर दो, तुमको मिल जाओ n तक तुम्हें x यूज कर दो, तो तुमको मिल जाओ सिंप्लीफिकेशन रे 2x minus 1. तो तुम्हें चेक भी कर दो ची 1 plus this on x minus 1 into d equal 2, तो 1 plus 2x minus 2, तो दिस इक्वल टू मते मिल रहा 2x minus 1. तो हमने हमारा a to c रो डिफाइन अब फंक्शन टा हमें fx इक्वल टू 2x minus 1 नंबर. तो तुम्हें चाहिए भी वेरीफाई करी परिवा, एटी 1 पुट करो 2, एटी ने 1 पुट करिवा, 1 पुट ले 2 minus 1 इक्वल टू 1, 1 remains 1, 2 पुट करो 4 minus 1 3, सैटिस्फाई करछि त हमने मोर फंक्शन टा 2x minus 1 अछि. ना फंक्शन ना मते बे बाइसेक्टिव प्रूफ करिवर अछि. तो 1 1 let x1 and x2 belongs to domain of the function. A here domain of the function. Then fx1 equal to fx2. So this implies 2x1 minus 1. Use करे fx रे. तो this one 2x2 minus 1. तो simplification करो तुमको मिल जाएगा 2x1 equal to 2x2 implies that x1 equal to x2. For all x1 and x2 belongs to set A. So fx is 1 1. Then हमें onto proof करेगा. Let y belongs to codomain. तो इटे हमारा codomain equal to c अच्छी देशनला codomain of the function. Then y equal to fx यूज करेगा. तो this implies y equal to 2x minus 1. तो x equal to सॉल्व कर ले y plus 1 divide by 2. तो तुम y टागन belongs to c अच्छी, तो तुम्हें c रो वैल्यू जहां भी देखा तुम्हें पुट करिवो, जो रिजल्ट आसीवो सेटा तुमरो डेफिनेटली करना सेट a रे थीवो ही थीवो, तो तुम्हें चेक भी करि परिवो. तो x belongs to मते मिलला सेट a for all y belongs to c. तो ये कंडीशन सैटिस्फाई करला हम डेफिनेटली हमर फंक्शन टा onto हे जीवो. सो fx is onto. यदि onto अच्छे 1 1 मिलला onto मिलला, therefore fx is bijective. So this implies n of a equal to n of c मिलला. So this implies sets a and c are equivalent. तो हमें a b इक्विवेलेंट प्रूफ कर देले, a c भी इक्विवेलेंट हे गला. देन थर्ड स्टेप रे में a और d को इक्विवेलेंट प्रूफ करिवा.
ना एबे हमें ए और डी को इक्विवेलेंट प्रूफ करिवा। थर्ड केस, लेट f डिफाइंड फ्रॉम a to d, fx इक्वल टू, ना ठीक से देखा 1 इला 1, 2 रो स्क्वायर 4, 3 रो स्क्वायर 9, 1 रो स्क्वायर 1, 4 रो स्क्वायर 16, 5 रो स्क्वायर 25 अच्छी तरह मते fx इक्वल टू मिलला x स्क्वायर। ये फंक्शन टाइप हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करिवा। लेट x1 and x2 belongs to set A domain of the function, then fx1 equal to fx2 implies that x1 square equal to x2 square. तो x1 square equal to x2 square implies that x1 equal to x2. तो ए केस रे x2 हबो कोन पे ना हमरो a सेट रो एलिमेंट्स नेचुरल अछि। यदि अदर किछि तर इंटीजर थिबो त सेटा मेनी वन हे जिवो। तो नेचुरल अछि तो इंप्लाई करिवो x1 equal to x2 for all x1 and x2 belongs to set A. तो मते मिलला फंक्शन इज 1 1. So fx is 1 1. Then on to check kariba, let y belongs to set D. D is the codomain of the function. Y equal to fx. So this implies y equal to x square. So x equal to middle, x equal to root of y. So y हमारा कौन ना D रो एलिमेंट 1 4 9 16 25, 1 root over 1, 4 root over 2, 9 रो 3, 16 root over 4, 25 5 का माने each एलिमेंट जो भी एलिमेंट मो D रो पुट करिबे रिजल्ट x आसीबो, x टा हमारा सेट A रे ही रहउचे। तो दिस वन ला belongs to set A for all y belongs to set D. So तुम स्टेटमेंट दे परिबा for all y belongs to D, there exists x belongs to A. So fx is onto. तो मते onto मिलला 1 1 मिलला, therefore fx is bijective. So this implies n of A equals to n of D मिलला. So this implies sets A and D are equivalent. तो ए बी इक्विवेलेंट इतला, ए सी इक्विवेलेंट इतला, ए डी बी इक्विवेलेंट हिगला। हेंस ए बी सी डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, let f be the given function. तो हमको f function given देची, g भी given देची, determine gauge and fog if possible. हमें gauge fog find करिए, यदि possible तो find करिएगा और test whether fog equal to gauge. तो हमें already ये टाइप क्वेश्चन हमें डिस्कस करी सारी थियोरी पार्ट रे। तो याको सॉल्व करे पहले तो तुमको आगे डोमेन ऑफ f और रेंज ऑफ f, डोमेन ऑफ g और रेंज ऑफ g आगे बाहर कर देवर अछि। तो डोमेन ऑफ f, the domain of f equal to here 1 2 3 4, 1 2 3 4. Then range of f, the range of f la a b c d, a b c d. Then मते domain of g find करियर अछि। तो domain of g equal to a b c d, a b c d. Then range of g, तो रेंज ऑफ g इक्वल टू x x y x, तो मते मिलला x y टू एलिमेंट्स। तो हमरा फर्स्ट हमें गॉफ फाइंड करियो। यदि गॉफ फाइंड करिवा तो हम गॉफ रे करना f टा फर्स्ट फंक्शन, तो g टा हमर सेकंड फंक्शन। तो हम डेफिनेटली हमरा रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f यदि सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g हैला तले हमरा गॉफ टा डिफाइंड हबा। तो क्लियरली करना रेंज ऑफ f, तो दिस वन सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g अछि, सैटिस्फाई को छिकना दिटा का सेट इक्वल अछि। दे कंडीशन सैटिस्फाई कला त हमरा गॉफ टा डिफाइंड हबा, हमें गॉफ बाहर करी परिया। तो गॉफ फाइंड करिवा तो एलिमेंट करना f रो, तो f रो डोमेन, तो f रो डोमेन अछि 1 2 3 4। तो मैं कि 1 को स्टार्ट करिबी, गॉफ ऑफ 1 इक्वल टू g ऑफ f1।
तो f1 कहला माने 1 रो इमेज, तो 1 रो इमेज हमको मिलला a, तो हम यूज करिवा g ऑफ a। g ऑफ a कहला माने a रो इमेज x अछि, तो हमको मिलला x, तो गॉफ रो फर्स्ट एलिमेंट मिलला 1x। सेमती गॉफ ऑफ तो f रो सेकंड एलिमेंट ला हमरा 2, तो g ऑफ f2, तो f2 इक्वल टू 2 रो इमेज दैट इज b, तो g ऑफ 2 इक्वल्स टू b, तो g ऑफ b रो इमेज अछि x, तो मते मिलला x। सेमती गॉफ ऑफ थर्ड एलिमेंट अछि हमरो 3, तो 3 यूज करिवा, तो g ऑफ f3, तो f3 कहला माने 3 रो इमेज c अछि, तो g ऑफ 3 इक्वल f3 इक्वल टू c, तो g ऑफ c कहला माने c रो इमेज y अछि, तो y मिलला। देन गॉफ ऑफ लास्ट एलिमेंट हमरो 4 अछि, हमें 4 यूज करिवा, तो g ऑफ f4, तो f4 कहला माने 4 रो इमेज d अछि, तो g ऑफ d, देन d रो इमेज x अछि, तो दिस वन मते x मिलला। देयरफॉर गॉफ रो एलिमेंट्स मते कोन मिलिबो ना 1x, देन 2x, 3y, 4x। तुमको बहुत इजी लगिवो, बस तुम्हें ए मेथड यूज करो कि तुमको मु थियरी रे जो आउ दीटा मेथड डिस्कस करती तुम्हें सेम मेथड भी गॉफ एंड फॉग बोथ बाहर करि परिबो। तो हमर गॉफ तो हे गेला, देन हमें फॉग रो कंडीशन चेक करिबो। फॉग रो कंडीशन चेक करिबो, g टा हमर फर्स्ट फंक्शन, f टा हमर सेकंड फंक्शन, तो g रो रेंज मोर अछि xy, और f रो डोमेन 1 2 3 4, तो क्लियरली करना रेंज ऑफ g not subset of domain of f, तो g रो रेंज क्लियरली नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f अछि, तो ये कंडीशन सैटिस्फाई करनी माने दिस इंप्लाइज फॉग इज नॉट डिफाइंड। यदि नॉट डिफाइंड अछि तो तारा एलिमेंट्स हमें केबे भी फाइंड करि परिबनी। तो हमरा गॉफ मिली गला बट फॉग टा डिफाइंड हलानी, तो क्लियरली करना फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। नंबर 9 f हमको गिवन देछि, g फंक्शन भी गिवन देछि, डिटरमिन गॉफ एंड फॉग इफ पॉसिबल और टेस्ट वेदर फॉग इक्वल टू गॉफ। नंबर 8 में जेमती कले नंबर 9 एग्जैक्टली सेमती सॉल्व करि परिबा, बट हमें ठीक है मेथड चेंज करी कर दो छी, सेकंड मेथड कर देबी, तो तुम्हें चाहे एग्जाम रे फर्स्ट मेथड भी यूज करि परिबो, सेकंड मेथड भी यूज करि परिबो। यदि मो गॉफ बाहर करिबी फॉग बाहर करिबी ता पूर्व मते डोमेन ऑफ f और रेंज ऑफ f, डोमेन ऑफ g और रेंज ऑफ g आगे बाहर करियर अछि। तो डोमेन ऑफ f, तो डोमेन ऑफ f 1 2 3 मिलना, देन रेंज ऑफ f 3 4 7, then domain of g 3 4 7, range of g, तो रेंज ऑफ g अछि 2 3 1, तो हमें गॉफ बाहर करिबा, ताकि गॉफ रो कंडीशन चेक करिबा, f रो रेंज और g रो डोमेन। f रो रेंज 3 4 7 अछि, g रो डोमेन 3 4 7, तो क्लियरली रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तो ये कंडीशन को सैटिस्फाई कला त हमर गॉफ टा डिफाइंड अछि, त हमें गॉफ बाहर करिबा। तो गॉफ बाहर करिबा तो ये हमें पूरा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड करिबा। तो गॉफ रो f टा हमर फर्स्ट फंक्शन, तो हमें f रो स्टार्ट करिबा, माने 1 रो स्टार्ट करिबा, 1 रो इमेज 3 रो इमेज 2 अछि, तो हमर फर्स्ट और थर्ड ला 1 2, तो हमने मते 1 और 2 मिलला फर्स्ट एलिमेंट, देन 2 रो इमेज 4 रो इमेज 3, तो 2 3 एला हमर नेक्स्ट एलिमेंट 2 3, देन 3 रो इमेज 7 रो इमेज 1 अछि, तो 3 1 ला हमर थर्ड एलिमेंट। तो हमें इजीली गॉफ रो एलिमेंट्स बाहर करि परिबा, तो हमको मिली गला गॉफ रो एलिमेंट। देन फॉग फाइंड करिबो g रो रेंज, तो रेंज ऑफ g और डोमेन ऑफ f,
तो रेंज ऑफ जी हम पाखरे 2 3 1 1 2 3 अछि, डोमेन ऑफ ए भी 1 2 3 अछि, भी तो सेम अछि। तमने ये भी कंडीशन सैटिस्फाई कोछि, तमने फॉग भी डिफाइन हमें फॉग बाहर करियो। तो फॉग बाहर करियो तो हमरो जी टा फर्स्ट फंक्शन तो हमें 3 रु स्टार्ट करिवा, 3 रु स्टार्ट करिवा। तो 3 रो इमेज 2, 2 रो इमेज 4, तो हमको मिल रहा 3 रो इमेज 2, 2 रो इमेज 4, तो 3 4 ला फर्स्ट एलिमेंट। 4 रो इमेज 3, 3 रो इमेज 7 अछि, तो 4 7 ला नेक्स्ट एलिमेंट। 7 रो इमेज 1, 1 रो इमेज 3 अछि, तो 7 3 ला थर्ड एलिमेंट। तो एमती हमको इजीली फॉग और गॉफ एलिमेंट्स मिल जेबो। तो इति हमरो सॉल्व हो गेला ना। फॉग इक्वल टू गॉफ हमको चेक करियर अछि, तो क्लियरली देखो एलिमेंट्स पूरा डिफरेंट अछि, तो देयरफॉर कोन होबा ना फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ ला आंसर। Number 10, let fx equal to root x and gx equal to 1 minus x square. तो फर्स्ट बिट रे क्वेश्चन अछि फाइंड नेचुरल डोमेन्स ऑफ f and g। तो हमें वन बाय वन सॉल्व करिवा। ओके, फर्स्ट बिट सॉल्व करिवा। तो फर्स्ट बिट रे नेचुरल डोमेन ऑफ f, तो मते fx equal to गिवन देछि root x। चलो हमर रूट ओवर ऑफ 0 जणा अछि 0, रूट ओवर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर्स एटा डिफाइंड हबो। तो रूट ओवर ऑफ नेगेटिव टा ही नॉट डिफाइंड, तो या वैल्यू केबे भी डिफाइंड हबोनी। तो मोर फंक्शन जो fx इक्वल टू रूट x अछि, तो दिस फंक्शन fx इज डिफाइंड इफ x is greater than equal to 0. तो x greater than equal to 0 means definitely x belongs to 0 to infinity, but this side a closed interval, this side a open interval. तो मोर x टा greater than equal to 0 ला माने 0 to infinity. Therefore domain of the function fx equal to मिलना 0 to infinity. बहुत easy. Then gx equal to 1 minus x square अछि, तो gx equal to 1 minus x square is a polynomial function। तो हमको ऑलरेडी जाना चाहिए polynomial function रे डोमेन ला set of real numbers। तो gx is defined for all x belongs to real number। यदि every real number पे defined अछि, तो therefore domain of the function gx equal to set a real number। तो हमारा फर्स्ट बिट थिला नेचुरल डोमेन ऑफ f and g, तो सेटा सॉल्व हो गेला ना। सेकंड बिट सॉल्व करिबा, कंप्यूट फॉग एंड गॉफ एंड फाइंड द नेचुरल डोमेन्स। आगे हमें फॉग फाइंड करिबा। तो फॉग ऑफ x इक्वल टू फार्मूला f ऑफ gx, तो दिस इक्वल टू f ऑफ gx। तो gx हम पाखरे 1 minus x square अछि, तो मो f 1 minus x square फाइंड करिबी, तो एटा 1 minus x square करिबी, एटी भी 1 minus x square कर देबी, तो रूट ओवर 1 minus x square हे गेला। तो मते फॉग मिल गेला। देन हमें गॉफ फाइंड करिबा, तो गॉफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx, तो इक्वल्स टू g ऑफ fx इक्वल टू हम पाखरे रूट x अछि, तो एबे g ऑफ रूट x यदि मैं एटी रूट x यूज करिबी, तो एटी भी रूट x रो स्क्वायर हे जेबो, तो 1 minus रूट x रो स्क्वायर इक्वल टू मिलला 1 minus x। तो मते फॉग और गॉफ मिल गेला। नै भी हमें फॉग रो डोमेन बाहर करिवा। तो फॉग ऑफ x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 minus x square अछि, तो 1 minus x square, तो दिस इज डिफाइंड if 1 minus x square is greater than equal to 0। तो मो greater than equal to 0 कोन पे नेली रूट अंडर ए पॉजिटिव रे डिफाइंड थी, वो 0 डिफाइंड, नेगेटिव के भी डिफाइंड होनी, तो तुम्हें 1 minus x square आइदर पॉजिटिव नबो और इक्वल टू 0। बट ए इनइक्वेशन सॉल्व करे सेटा भी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आगे माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर x square minus 1 माइनस मल्टीप्लाई करला माने इनइक्वेशन दा रिवर्स हे जेबो, लेस देन इक्वल टू 0 मिलला। तो दिस implies डिफैक्टराइज कर ली a square minus b square फॉर्मूला अप्लाई कर ली x plus 1 into x minus 1 less than equal to 0। बट ए इनइक्वेशन सॉल्व करे पे तुमरा 3 मेथड्स अछि, तबे तो सबटो सिंपल ला फार्मूला। तो फार्मूला हमरो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर डिस्कस हे सारी छी। तो मोर लेट a smaller than b नेली, यदि मते के पे x minus a into x minus b less than equal to 0 मिलला, तो यार आंसर इज x between
टू रूट्स a एंड b तो ये a स्मॉलर b ग्रेटर अछि तो ये x + 1 अछि माने रूट टा -1 और x - 1 अछि माने रूट ला 1 तो मोर एक्स्ट्रा करना बिटवीन टू रूट्स देबो तो सबटू स्मॉलर रूट -1 ग्रेटर 1 अछि तो x बिलोंग्स टू मते मिलला -1 to 1 नाउ फॉग अछि माने जीरो डोमेन ना देखो जीरो डोमेन हमरो रियल नंबर थिला तो रियल नंबर ये -1 to 1 टा सबसेट ऑफ रियल अछि देयरफॉर डोमेन ऑफ फॉग इक्वल टू हमको मिलला -1 to 1 गॉफ ऑफ x इक्वल टू 1 - x अछि तो एमती तो हमरो डोमेन ऑफ गॉफ कहला माने रियल नंबर तुम भाबिबो 1 - x तो डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर तो तुम भाबतो जे यार डोमेन टा रियल नंबर हबो तो एक्चुअली रियल नंबर हबोनी कोन पे ना f टा फर्स्ट फंक्शन थिबो f रो डोमेन ला हमरो 0 to infinity अछि देयरफॉर डोमेन ऑफ गॉफ इक्वल तुम यूज करिबा 0 to infinity द रीजन ला सिंस डोमेन ऑफ f इक्वल टू 0 to infinity अरे हमरो गॉफ केस रे करना f टा फर्स्ट फंक्शन थिबो ना तो तुम रियल नै गले रॉन्ग हे जीवो तो f रो डोमेन जदी 0 to infinity अछि तले गॉफ रो डोमेन डेफिनेटली 0 to infinity रा स्क्वायर ब्रैकेट अछि एटा तुमरो ओपन ब्रैकेट अछि तो हमको फर्स्ट बिट और सेकंड बिट रा आंसर मिली गेला तो नेक्स्ट हमें थर्ड बिट और फोर्थ बिट सॉल्व करिबा थर्ड बिट which you find a natural domain of hx equal to 1 minus x तो hx equal to 1 minus x ये फंक्शन तो always defined इटा मोर कंपोजिट फंक्शन है मते खाली सिंपल hx इज अ फंक्शन देछि तो hx is defined for all x belongs to real number therefore domain of the function hx equal to set of real number तो इसलिए किसी प्रॉब्लम नहीं डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल हमको मिलला रियल नंबर बट द फोर्थ बिट सॉल्व करिबा तो इट शो दैट h इक्वल टू गॉफ तो h इक्वल टू मते गॉफ प्रूफ करियर अछि ओनली ऑन दिस सेट तो सेट तो r इट इज 0 दिया अछि बट एलिमेंट्स करना x द रियल नंबर है बट x द ग्रेटर देन इक्वल 0 तो हमने इटा हमरा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स तो हमने एमती हमको गिवन देछि 0 to infinity इस सेट इंटरवल इस सेट रो एलिमेंट्स इक्वल अछि तो मते h इक्वल टू गॉफ प्रूफ करे छै इन दिस सेट तो ऑलरेडी हमर देखो hx इक्वल टू 1 minus x तो हमें टिके पूर्व गॉफ फाइंड करले गॉफ ऑफ x इक्वल हमको मिलथिला 1 minus x तो देयरफॉर मते hx इक्वल टू गॉफ ऑफ x और दिस इक्वल टू मिलला 1 minus x तो दिस इंप्लाइज hx इक्वल टू मते 1 minus मिलला तो एठी hx टा करना गॉफ अछि कंपोजिट फंक्शन अछि मन तार डोमेन टा कोन बना f रो डोमेन सिंस डोमेन ऑफ fx इक्वल टू थिला 0 to infinity तो दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ hx इक्वल टू मिलना मते 0 to infinity एना हमरो गॉफ टा कंपोजिट फंक्शन f रो डोमेन जहां थिबो तो तुमरो गॉफ रो डोमेन से हबो तो हमरो डोमेन ऑफ fx हमरो 0 to infinity थिला तो डोमेन ऑफ hx इक्वल टू 0 to infinity मिलला तो हमने मोरो एठी किंतु देखो एठी hx इक्वल टू 1 minus x अछि एठी hx इक्वल टू 1 minus x अछि बट hx हमरो कंपोजिट फंक्शन अछि माने f रो डोमेन जहां सिबो h रो डोमेन सेम आसीबो तो डोमेन ऑफ hx इक्वल टू मते मिलला 0 to infinity हेंस h equal to gauge only on R0 means set of all positive real numbers. X belongs to R such that x is greater than equal to 0. और भी हमें यदि चाहिए यूज करी परिवा 0 to infinity. ला proved. Number 11. Find the composition fog and gauge and test whether fog equal to gauge. आगे fog बार करीबा गॉफ बार करीबा तापरे चेक करे फॉग इक्वल टू गॉफ के नॉट इक्वल टू गॉफ और हमको fg ऑलरेडी गिवन देछि और डिफाइंड और r भी गिवन देछि तो फर्स्ट बिट fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 तो हमें के फॉग बाहर करीबा तो फॉग ऑफ x इक्वल टू f ऑफ gx
तो दिस इक्वल टू gx अछि x स्क्वायर माइनस 2 तो तुम gx पुट करिवो तो सपोज एटी हमें 5 पुट करिया 5 रो क्यूब प्लस 1 तो हमें x स्क्वायर माइनस 2 एटी यूज करला माने एटी भी मते यूज करियर अछि तो x स्क्वायर माइनस 2 रो क्यूब प्लस 1 तो मते फॉग मिल गेला देन गॉफ बार करिवा तो गॉफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx तो दिस इक्वल टू g ऑफ fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 तो g ऑफ x क्यूब प्लस 1 तो एटी x क्यूब प्लस 1 यूज करिवा तो एटी भी यूज करिवा तो x क्यूब प्लस 1 रो स्क्वायर ही जीवा माइनस 2 तो देखो याको एक्सपांशन कला पर भी तो एटा केबे भी इक्वल हबनी तो हमको तो फॉग ऑफ मिल गेला देन कंक्लूजन कोन मिलला तो देयरफॉर फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ ला फर्स्ट बिट आंसर तो सेकंड थर्ड बहुत इजी अछि तुम नीचे करिवो मो फोर्थ बिट कर दोछि ए दिटा तुमको होमवर्क रहता फोर्थ बिट fx इक्वल टू 1 माइनस x क्यूब रो पावर 1/3 अछि gx इक्वल टू 1 माइनस x क्यूब रो पावर 1/3 अछि तमे आगे फॉग फाइंड करिवा तो फॉग ऑफ x इक्वल टू f ऑफ gx तो gx इक्वल टू 1 माइनस x क्यूब रो पावर 1/3 तो एटी टिके पिला कंफ्यूज होंती बोले मु जानि के फोर्थ बिटा कर दो छी तो हमको ए एक्सप्रेशन टा x रे यूज करियर अछि तो हमरे x जोटी अछि हम सेट यूज करबा ए सब 1 माइनस क्यूब पावर 1/3 किछि चेंज होबनी तो हम खाली x रे यूज करबा तो माने मोर ब्रैकेट रहला 1 भी रहला माइनस रहला x टा मोर हे जीवा 1 माइनस x क्यूब रो पावर 1/3 तार पावर क्यूब अछि सेटा भी तुमे रखिबो देन ब्रैकेट रहला होल टू द पावर 1/3 तो मु कोन कहछि ना ए एक्सप्रेशन टा खाली x रे यूज करछि आउ जहां तिला सब यूज कर दे छी देन ताको सिंपलीफिकेशन करिवा ए 3 3 ते मल्टीप्लाई हे जीवो ए 1 माइनस x क्यूब हे जीवो देन पावर 1/3 ब्रैकेट ओपन कला पर 1 1 कैंसिल हे जीवो x क्यूब आसुछि तार पावर 1/3 तो 1/3 मल्टीप्लिकेशन हे गेले पावर 1 हे जीवो तो मते मिलला फॉग ऑफ x इक्वल टू x मिलला देन हमें गॉफ ऑफ x फाइंड करिवा तो g ऑफ fx तो g दिस इक्वल टू fx तो सेम हमारा 1 माइनस x क्यूब रो पावर 1/3 अछि तो दीटा का फंक्शन सेम अछि नाउ मते ए एक्सप्रेशन टा gx माने मते x प्लस रे यूज करे जे एटी यूज करबी मोर ब्रैकेट रहला 1 रहला माइनस रहला x टा मोर 1 माइनस x क्यूब रो पावर 1/3 x रहला तार क्यूब अछि पावर मैं क्यूब भी रखिबो देन होल टू द पावर 1/3 अछि ताको भी तमे सेठी रखिबो देन सिंपलीफिकेशन कर लेटा मल्टीप्लिकेशन हे जीवो 1 माइनस ए एक्सप्रेशन टा मोर सॉल्व हे कि 1 माइनस x क्यूब अछि जीवो देन पावर 1/3 ब्रैकेट ओपन कला पर 1 कैंसिल हे जीवो तो x क्यूब मिलिबो तो ये ला x क्यूब रो पावर 1/3 तो ये सॉल्व भेला मते x मिलला तो हमको फॉग मिलला गॉफ मिलला डेटा इक्वल मिलला तो देयरफॉर फॉग इक्वल्स टू गॉफ तो मु जेमती बाहर कली तो सेमती सेकंड बिट रे फॉग ऑफ बाहर करिवो और थर्ड बिट रे भी फॉग ऑफ बाहर करिवो यदि इक्वल थिबो तो फॉग इक्वल टू गॉफ नॉट इक्वल थिले फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ रे एंड करिवो Number 12, let f be a real function. Show that hx equal to fx plus f minus x is always an even function और gx देखिए fx minus f minus x is always an odd function. तो हमको इवन फंक्शन hx को इवन फंक्शन प्रूफ करे छे gx को ऑड फंक्शन तो इवन फंक्शन रो कंडीशन अछि ऑड फंक्शन रो कंडीशन ये फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ी सरथियो मेटी कहिबी बट तुम ऑलरेडी होछि पढ़ी सरथियो तो फर्स्ट बिट रो सॉल्यूशन तो hx इक्वल टू मते fx गिवन देछि f माइनस x तो इवन के और टेस्ट करिवो तो तुम्हें कोनना h माइनस x तो h माइनस x तुम्हें फाइंड करिवो तो एठी हमें माइनस x यूज करिवो तो f x टर्म माइनस x यूज करिवे ना माइनस x तो दिस इक्वल टू मते f माइनस x प्लस fx मिलला तो इक्वल टू मते fx प्लस f माइनस x खाली दिटा पोजीशन चेंज कर देछि तो मते hx मिलला यदि h माइनस x इक्वल टू hx is जीवो तो दिस implies hx is an even function
तो तुम्हारा इवन फंक्शन रो कंडीशन कोन थिला ना फर्स्ट ईयर रे f - x = fx जे तुमे h - x = hx प्रूफ कर दो त तुम फंक्शन टा इवन फंक्शन हबो जदि टी माइनस आसी जीवो तले मोर फंक्शन टा ऑड फंक्शन हे जीवो ना मते gx टा ऑड फंक्शन प्रूफ करियर अछि तो एक्जेक्टली सेम थी करिवा तो gx तो हमको गिवन देछि fx - f - x तो हमें g ऑफ -x फाइंड करिवा तो एठी -x यूज करिवा तो एठी भी -x यूज करिवा माइनस ऑफ -x तो दिस इक्वल टू f - x तला -fx हेगला तले माइनस टा कॉमन नहीं गेले fx - f ऑफ -x ना मते जो फंक्शन मिलला ना देखो कंपेयर करो दिस टू इक्वल अछि तो येला gx तो मते मिलला g ऑफ -x इक्वल टू -gx तो दिस इंप्लाइज gx इज एन ऑड फंक्शन तो इवन फंक्शन प्रूफ कर ले hx h - x इक्वल hx प्रूफ करिवो और ऑड फंक्शन प्रूफ करिवो तो तुम g - x इक्वल टू -gx तो f था g था h था सेथरे के कुछ प्रॉब्लम नहीं जदि टी माइनस आसीला तो तुम ऑड फंक्शन हे जो यदि प्लस आसीबो सेटा इवन फंक्शन हे जीवो तो ये बिट हमरो हे गेला a बिट The second part रे अछि express each of the following functions as the sum of an even function and an odd function तो हमको फंक्शन गिवन देछि हमको एक्सप्रेस करियर अछि sum of an even function and an odd function तो यहाँ पे हमारा ओटे ऑलरेडी फार्मूला अछि तो fx equal to fx plus f minus x divided by 2 plus fx minus f minus x divided by 2 तो तुम्हें चेक करो ए पार्ट तुम्हारा ऑलवेज इवन फंक्शन थीवा ये पार्ट हमारा ऑलवेज ऑड फंक्शन थे तो हमारा ए फार्मूला यूज करके हमें सेकंड बिट टा सॉल्व करिवा तो फर्स्ट बिट रे मते गिवन देछि fx = 1 + x + x² तो मते ए फार्मूला रे अप्लाई करियर छी तो f - x बाहर करियर छी तो 1 एठी -x यूज करले -x रो स्क्वायर equal to 1 - x plus x² मिलला therefore फार्मूला यूज करिवा फार्मूला जहां छी तुमे कॉपी पेस्ट कर देबो fx यूज करली 1 + x plus x² plus f - x यूज करली 1 - x plus x² divided by 2 then second term आसी जीवो fx 1 + x plus x² fx अछि जहां यूज करिवा माइनस ये एक्सप्रेशन टा माइनस मल्टीप्लाई करिबे -1 + x - x² हे जीवा डिवाइडेड बाय 2 तो दिस इक्वल टू ना देखो x कैंसिल हे गला तो एटी 1 कैंसिल हे जीवा x² भी कैंसिल हे जीवा 1 + 1 2 plus 2x² divided by 2 plus केला x plus x 2x divided by 2 तो इक्वल टू मिलला 1 plus x² plus x मिलला तो ए पार्ट तुम चेक करि परिबो एटा हमर इवन फंक्शन थिबो ए पार्ट डेफिनेटली ऑड फंक्शन थिबो तो हमर क्वेश्चन रे किंतु एक्सप्रेस करियर थिला सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन जो फॉर्म रे एंड गले तो एटा ही हमर आंसर तो यार सेकंड बिट थर्ड बिट फोर्थ बिट भी एग्जैक्टली हमें सेम फार्मूला यूज करके सॉल्व करि परिबा Now second bit solve करिवा fx = x² अछि तो f - x फाइंड कर दबो तो ये -x रो स्क्वायर हे जीवो तो इक्वल टू x². देयरफॉर तुमको फार्मूला रे पुट करियर अछि तो fx x² प्लस f - x से भी x² डिवाइडेड बाय 2 x² माइनस ए भी मते -x² अछि तो माइनस दिस ओनली x² डिवाइड बाय 2 तो दिस इक्वल टू मिलला 2x² by 2 प्लस दिस वन नंबर 0 by 2 तो इक्वल टू x² plus 0 आंसर देन थर्ड बिट तो तुम्हें थर्ड बिट सेमती टेस्ट करिवा fx equal to e to the power x then f minus x equal to e to the power minus x then बस खाली तुमको फार्मूला रे पुट करियर अछि e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 fx equal to e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 तो या को तुम्हें एलसीएम ना बनी एलसीएम नियंत्रण ने हमें सही फॉर्म रे ही एंड करिवा तो तुम्हें टेस्ट करे तुमको ये पार्ट टा इवन फंक्शन मिल जीवो ये पार्ट टा ऑड फंक्शन मिल जीवो तो हमको आंसर मिलला बस fx equal to this result
तो सेमती तुम्हें फोर्थ बिट fx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस sin x मु खाली f माइनस x टा कहि दोछि e टू द पावर माइनस x sin माइनस x इक्वल टू माइनस sin x बस तुम्हें कौन करिवो ना fx f माइनस x फार्मूला रे पुट करके सॉल्यूशन तुम्हें एटी कंप्लीट करिवो नीचे सॉल्व करनाबो Number 13, let x equal to 1, 2, 3, 4. Determine whether f defined from x to x. Function defined from x to x is defined as given below have inverse. Find f inverse if it exists. यदि इनवर्स एक्जिस्ट करिबा हमको फंक्शन रो एलिमेंट्स गिवन देछि माने f गिवन देछि सेटा फंक्शन किनवा में चेक करी कहबा f रो एलिमेंट्स गिवन देछि तो हमको f इनवर्स यदि एक्जिस्ट करथिबो त हमें f इनवर्स फाइंड करिबा बट इनवर्स टा एक्जिस्ट करे को कंडीशन रे यदि फंक्शन टा इन्वर्टिबल थिबो इन्वर्टिबल माने बाइसेक्टिव थिबो यदि बाइसेक्टिव थिबो त हमर इनवर्स टा एक्जिस्ट करिबो तापर हमें इनवर्स फाइंड करिबा तो सॉल्यूशन रो फर्स्ट बिट f जो मते f गिवन देछि नाउ देखो मोर फर्स्ट सेट x सेकंड सेट भी तो x तो f डिफाइंड फ्रॉम x टू x तो 1 2 3 4 अछि 1 2 3 4 अछि 1 इमेज 4 2 इमेज 3 इमेज 2 and 4 इमेज 1 तो क्लियरली करना f is bijective यदि बाइसेक्टिव अछि तो दिस implies f inverse is defined बाइसेक्टिव माने इन्वर्टिबल माने इनवर्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड यदि इनवर्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड अछि तो f इनवर्स रे फाइंड करिवो बस खाली 1 4 टा को 4 1 कर देबो देन 2 3 को 3 2 के नंबर इनवर्स टा कोन सेकंड सेट टू फर्स्ट सेट अछि बटा f इनवर्स देन 3 2 टा 2 3 और लास्ट एलिमेंट 4 1 टा 1 4 तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन 4 1 2 3 2 2 3 then the 1 4 second bit जो मते f given देछि 1 3 x अछि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 अछि 2 1 अछि then 3 1 अछि देखो 2 1 3 1 फंक्शन मोर मेनी 1 हे गेला तो इटी f टा करना f is not 1 1 many 1 1 not 1 1 तो not 1 1 तो this implies definitely f is not invertible यदि invertible होने तो f inverse does not exist therefore f inverse does not exist then third bit रे हमरो फंक्शन अछि f defined from same x to x अछि x अछि f अछि तो 1 2 3 4 अछि 1 2 3 4 अछि तो 1 2 फर्स्ट एलिमेंट 1 2 then 2 3 then 3 4 then अछि 4 1 तो चेक करो क्लियरली 1 1 भी अछि 1 2 भी अछि 1 1 1 2 अछि तो here f is bijective the bijective अछि this implies f is invertible यदि इन्वर्टिबल अछि तार इनवर्स टा डेफिनेटली एक्जिस्ट करिवो तो देयरफॉर f इनवर्स इक्वल टू तो 1 2 को हमें काउंट करिवो ना 2 1 2 3 को 3 2 और 3 4 को 4 3 एलिमेंट कर दबो देन हमरो 4 1 टा 1 4 तो इनवर्स जेबे भी तुम्हें फाइंड करिवो सेटा तुम्हारा सेकंड सेट टू फर्स्ट सेट येला f इनवर्स माने 1 4 2 1 3 2 देन असे जीवो 4 3 then fourth bit तो fourth bit is same हमारा f defined है x to x 1 2 3 4 elements तो सब 1 2 3 4 रहे बट गिवन सेट अछि तो fourth bit रे 1 1 then 2 2 then अछि 2 3
तो 2 3 एटी हमको क्लियरली वन मेनी रिलेशन मिलला तो ये फंक्शन रो कंडीशन सैटिस्फाई करनी माने f इज नॉट ए फंक्शन और तुम्हारा 4 4 अछि तो 3 रो भी इमेज नहीं तो हियर f इज नॉट ए फंक्शन the reason law f2 equal to f2 અને 2 रा इमेज कोन अछि 2 and तुम्हारा 3 अछि so f is not a function यदि फंक्शन होनी तले केबे भी इनवर्स डिफाइंड होबनी therefore f inverse does not exist then fifth bit f defined from x to x 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 then 2 2 तो क्लियरली मेनी वन है गलनी तो हमने तुम्हारा मेनी वन माने नॉट 1 1 तो केबे भी बाइजेक्टिव होबनी तो 3 2 देन अछि 4 2 तो f इज नॉट 1 1 तो दिस implies f is not invertible यदि not invertible अछि therefore f inverse does not exist आंसर तो जेबी भी तुम्हें इनवर्स फाइंड करिवो आगे बाइजेक्टिव माने बाइजेक्टिव चेक करिवो बाइजेक्टिव हला माने फंक्शन टा इन्वर्टिबल हबो इन्वर्टिबल हले तुम्हें f इनवर्स फाइंड करिवो